So now they will tell, now they can tell, sir. Sir is asking what are the benefits. People have given chat message, tax benefit, saving for future, guaranteed return. Any participants, whether saving for future, yeah, then social security and income tax rebate, okay. So now they can tell, sir. Sir is a screen देखो क्या अपना ग्रुप का रिकॉर्डिंग हुआ था नहीं कर लो ऑटोमेटिक थोड़ी होगा मेरी तुमको कहाँ जाना है ग्रुप पहले मुझे
सर सर मेरा एंड से सम प्रॉब्लम है, जस्ट मैं कर रहा हूँ, जो उसको कर रहा हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट तुम के लिए वो सर करना है। हाँ? सर आप स्क्रीन शेयर किए हैं, कंप्यूटर है उनको देखो तो नहीं म्यूट नहीं, उनका नाम माही MHM नहीं उन्होंने सर लिव किया शायद हाँ लिव किया है मीटिंग वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे ना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं थी। वहां से कुछ तो प्रॉब्लम है शायद अच्छा मतलब कोई नहीं जो किया था पहले भी लीव किया था फिर मैंने उनको फोर्स किया था लीव किया था कोस्ट से। यूट्यूब करके रहेगा एक ऐसे ही किसके मतलब किसके ये पूरी तरह करता ही नहीं दूसरे को आप लेट मत ना आप लेट मत हां मैं ठीक हो मैसेज किया नहीं नहीं गाइस कौन तो शेयर कर वहां के लिए पोस्टिंग इस पर है अभी तो हो रहे हैं ना। आवाज नहीं आ रही लेकिन तरह से अच्छा। नहीं तो स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, आपका आवाज तो नहीं आ रहा है सर। अभी देखता हूँ, लेट मी ट्राई। ओके नाउ इट इज कम। Yes, now my voice is audible. यस या सर। So just wait. Slides move down. यस सर ये स्लाइड्स हो जाते ही गड़बड़ होती है, रहने दो फिर। रजिस्ट्रेशन चिप्स के नॉन दूसरे को करना चाहिए स्लाइड्स हो जाते ही गड़बड़ हो। नहीं आ रहा है ये स्पीकर होता है Now slides are appearing, Das sir. या सर या Okay, let me start now. Yes, I welcome all the esteemed participants. Good afternoon. Now we'll discuss the provision relating to GP fund rules. This is my profile. ठीक है ना I was discussing with you तो किरण को लगेगा ना। what are the benefit of GP fund subscription. Nobody responded. Now let us see. First is your money is with the government and is very safe. Flexibility in subscription. In a financial year, you can enhance 2 times and can reduce 1 time. Easy to take advance or withdrawal from the GP fund. Interest earning, you will earn the interest. Interest is not taxable. There is here a questions. Anybody is aware what is this? Anybody will respond or should I continue? Rajesh ji. सर प्लीज कंटिन्यू Okay. Interest is not taxable. Up to what limit? 5 lakhs, sir. Okay. I want such kind of question answer from you. If the contribution in the financial year is up to 5 lakh, then there is no income tax. And now it is a mandate that you cannot subscribe more than 5 lakh. In case it has gone beyond 5 lakh, then that interest earned is taxable. Nomination facility. Are you aware there is a change in the nomination? Anybody is aware? Yes, please. Yes, sir. Whether anybody is aware there is a change in the nomination facility? यस सर बोलिए जो यस सर बोलिए क्या है। सर प्लीज एक्सप्लेन Yes, explain now. After issuing of the CCS pension rules 2021, the form of nomination has been changed. Now the form is separate. It contains more information than the earlier form. And now one common nomination form for GP fund, for insurance, and for gratuity, one form is sufficient. Cannot be attached by a court of law. It is so sacred money. Even a court of law cannot direct a department or individual to make payment from the GP fund. It is safe money. DLIS. Now there is another provision under the GP fund rules, DLIS. Anybody is aware what is DLIS?
Deposit linked insurance scheme. Very good. Thank you. So you are aware what is this? If Yes. we death in while in service, we can get up to 60,000. Oh, see, not 60%. I will discuss in subsequent slides. 60,000. Okay, I will discuss in subsequent slides. Okay, let's start now. These rules are known as General Provident Fund, CS, Civil Services Rule 1960. And they came into force from which date? 1st April 1960. In the GPF Fund rules, there are 41 rules, 1 to 41. And rule number 17 to rule number 30 have been obsoleted. They are not in operation. So we'll discuss provision under rule number 1 to 16 and rule number 31 to 41. Now, what is the emoluments for the purpose of GP fund? As per 6 CPC, pay in payment plus grade pay, or as per 7 CPC, leave salary or pay received in foreign service. Pay means basic pay. No DA is included. Definition of family under GP fund rules. Wife, wives, except judicially separated wife. Here, I want to convey one thing. In the case of pension rules, I'm repeating, this is very important to all of you. Under pension rule, a judicially separated wife is entitled for the all benefits. But under GP fund rule, judicially separated wife is not entitled for anything. And I want to know from you, what is judicial separation? Anybody? Judicially separated means the case is still under the consideration of courts. Very good. Who is speaking? From IASR, sir, Rahul. Mr. Rahul. Thank you, Rahul. Now, judicial separation is the couple has filed a case for divorce in a court. From the date of filing the case in the court till the date of final award of the divorce, that period is known as judicial separation. Suppose a government servant dies when this judicial separation is going on, then wife is not entitled for anything under GP fund. But in pension rules, she is entitled for each and everything. Husband, unless expressly excluded. Parents, parental grandparent, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son, widow, and children. This is the definition of family under GP fund rules. Constitution of fund, rule number 3. All sum paid into the fund under these rules shall be credited to the books of the government account named the general provident funds kept under the public account. Rule number 4, conditions of eligibility. Now it is not applicable now because from the last 19 years, new subscribers are not there. Otherwise, the condition was 1 year service. Rule number 5, very, very important, nominations. On joining fund, subscribers submit nomination in prescribed form in the name of family. Just I was discussing. Now the name of the form is Form 3 under CCS Pension Rule 2021. Those who have not filed it may file again. Shares should be specified in the nomination form. Can be changed anytime, even after retirement, but before receiving the payment. Nominee facing trial may be denied payment. Suppose there is a doubt that some government servant, in the murder of a government servant, some family member is involved, that family member is denied the payment. Provident fund assets not to be paid when the matter is subjudiced. Now, just I was telling you,
Now, as CCS pension rules, new forum. Now, forum number 3, not 1, has been prescribed for common nomination for GP fund insurance in grade state. Now, here, a male government servant cannot exclude the name of his wife, but a female government servant has liberty to exclude the name of her husband. Subscribers account, rule number 6. GPF account number must be entered at the right-hand side, top page of the service book. And either when a government servant is transferred from one department to another, and his GPF account number is changed, that old GPF account number is struck off and new account number is recorded there. Account shows subscription, interest, subscriber advance, withdrawal from the fund. Condition of subscription. Subscriber shall subscribe monthly. Subscriber may, at his option, not subscribe during leave, either does not carry salary, means during the period of EOL. There is no paid run, then there will be no subscription. During suspension, no subscription. During the period of suspension, government servant is paid only substantial allowance and no subscription will be allowed. Subscription completely discontinued, stopped during the last 3 months of service. Suppose a government servant is retiring on 31st December, then during the month of October, November, December, there will be no subscription. Rate of subscription. What is the rate of subscription now? Minimum 6%, maximum 100% of emoluments. But the rider is, in a financial year, the total contribution should not go beyond 5 lakh. It can be reduced once in a financial year and can be enhanced twice in a financial year. No change of subscription due to retrospective change in pay. Suppose your pay has been changed from a back date, you have been promoted from back date, your pay has been announced retrospectively. The subscription at the enhanced rate will not be allowed. Now, as per Ministry of Department of Pension and Pension Welfare notification number so and so dated 12th November 2022. In a financial year, total subscription should not go beyond 5 lakh. On transfer of government servant to foreign service. Foreign service means when a government servant is transferred from on deputation to a quarters body, that service is known as foreign service. In that case, when a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the rules of the Provident Fund in the same manner as if he was not transferred to a service or deputation on foreign service. In that case, every month, the subscription will realize from the salary of the government servant and will be remitted to his parent office on a monthly basis. The realization of subscription. Here, it is mentioned that subscription will be realized from the monthly emoluments, monthly salary. A government servant cannot ask that my subscription may be recovered from the last month of pay in lump sum. That is not permissible. Every month it will be recovered, it will realize from the salary. Now, rule number 11 regarding rate of interest. The current rate of interest, what is the current rate of interest on GP fund? 7.1%. Very good. 7.10%. Thank you. Now, interest calculated at the close of the financial year by adding monthly subscription in the OB means opening balance minus the advance withdrawal during the financial year. It is very, very important. Interest on delayed recoveries due to delay payment of salary, leave salary extra, is payable from the month in which it was due, irrespective of the pay or leave salary was
ड्यू रेस्पेक्टिव ऑफ द मंथ इन विच इट वाज एक्चुअली ड्रॉन, यानी जिस महीने से आपकी सैलरी ड्यू थी उसी महीने पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। Rule number 12 and 13 regarding advances from the GP fund. Now, can you subscribe? For which purpose advance from the GP fund is admissible? किस किस पर्पस के लिए जीपी फंड से एडवांस लिया जा सकता है, मिलता है? For education, Higher education, marriage, एक एक करके एजुकेशन, medical, मेडिकल वर्ड क्या कहेंगे उसको? homes इसको and कहेंगे to meet the cost of treatment. house building, एक एक करके बोलिए। एजुकेशन, दूसरा आपने बताया है मेडिकल, renovation of house, रहने वाले हाउस का नहीं मिलता, And fees of अल्पावधि नहीं मिलता। नेक्स्ट, and fees. Education fees. एजुकेशन तो हो गया Educational fees. है जी, marriage of children, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, Yes. और बताइए Purchase of articles. परचेज durable ऑफ Articles. Some consumables. ड्यूरेबल्स कहते हैं उसको, उसका क्या नाम क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। Durables. और बताइए durable, 7 पर्पज है जिसके लिए एडवांस मिलता है। 7 पर्पज। हाउस बिल्डिंग एडवांस, हाउस बिल्डिंग के लिए नहीं मिलता रितु जी, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस के लिए भी। ओब्लिगेटरी मैरिज में आ जाएगा। और बताइए 4 हुए अभी, 3 और बाकी हैं। अमित जी बोलिए। परचेज ऑफ हाउस होल्ड, वो तो आ गया है, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। 3 और बाकी हैं। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस में आएगा। और बताइएगा। purchase of motor car, है जी, purchase of motor car or vehicles, परचेज ऑफ, motor cars, sir, motor नो car. नो नो, दैट इज नॉट एडवांस। Sir, regarding legal proceedings, sir. है जी, The amount payable to group insurance, दैट इज नॉट अंडर एडवांस। Renovation of house. नो 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 purchase of plot, नो। लीगल एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? रजनीश जी। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, रिलीजियस नहीं आएगा, रिलीजियस ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस में आएगा। नेक्स्ट है टू मीट द कॉस्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, टू मीट द कॉस्ट ऑन लीगल, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लीगल प्रोसीडिंग्स, ये हो गया हमारा 5वां नंबर। 6ठा नंबर है कॉस्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और 7वां नंबर है टू मीट द कॉस्ट ऑन ट्रेवलिंग फॉर विजिटिंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ये 7 पर्पज हैं जिसके लिए एडवांस मिलता। देखिए कौन कौन से हैं। रूल नंबर 12 एंड 13। सबसे पहले है इलनेस। फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट। इनके ट्रीटमेंट के लिए you can take advance from the GP fund. We are talking about the advance. Second, education, to meet the cost on primary education, higher education, covering all stream of education and institutions. 2 हो गया। थर्ड है obligatory expenses, with betrothal function यानी engagement, daughter, son, dependent, marriage, funerals, और other ceremonies of self or family members dependents। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? श्राद्ध सेरेमनी आ सकती है, दस्तार बंदी आ सकती है, करण छेदन आ सकती है, मुंडन आ सकता है। जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो भी जरूरत हैं, दे आर कवर्ड अंडर द ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, और जैसे हमारा क्योंकि फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, उसके फंडर्स के लिए भी यू कैन टेक एडवांस फ्रॉम द जीपी फंड। डी, कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कॉस्ट ऑफ
लीगल प्रोसीडिंग, इसका क्या मतलब है? इन योर फैमिली मेंबर्स, सपोज देयर इज ए लिटिगेशन and you have to seek help of a advocate, lawyer, legal expert. To meet that cost, you can take advance from the GP field under the heading cost of legal proceedings. Next, cost of defense. Cost of defense. इसके अंदर क्या suppose there is a litigation between the government and the government servant. सपोज आपकी प्रमोशन रोक दी है, आपके पे गलत फिक्स कर दी है, और यू हैव टू अप्रोच ए कोर्ट एंड फॉर redressal of your grievance you have to hire the services of an advocate. For making payment to the advocate, legal expert, you can take advance from the GP fund under the heading cost of defense. Next है consumer durables. For purchasing household article, you can take advance from the GP fund. The last one is pilgrimage and visiting place of eminence of all religion. और कोई भी आपका धार्मिक स्थल है उसको विजिट करने के लिए you can take advance from the GP fund. I think you will keep in mind these are the 7 purposes. Should I repeat or go ahead? सर लीगल और डिफेंस बता दीजिए दोबारा। कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, देखिएगा आप बोल रही हैं अल्पना जी। हाँ जी सर। इसमें क्या होता है, लीगल कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर है आपकी फैमिली है, आपकी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, हाँ जी। उसके लिए आप कोर्ट में जाते हैं तो आप किसी वकील की मदद लेते हैं, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, अब उसके लिए आप एडवांस ले सकते हैं। ओके। इसका ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, हाँ या जी। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए है, ठीक है। जी। कॉस्ट ऑफ डिफेंस में क्या है, जैसे मैंने बताया था, सपोज डिपार्टमेंट ने आपकी प्रमोशन नहीं की जी, आपकी पे ठीक नहीं पे की मैं फिक्स की, तो आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो आपको खर्च होगा आपका, जी सर। आपको वकील करना पड़ेगा, जी। उसके लिए आप एडवांस ले सकते हैं अंडर द हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आई होप इट इज क्लियर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, ये 2 और बता दिया मैंने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड विजिटिंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब आगे चलें। जी सर। ओके, ये 7 हो गए। आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ एडवांस एडमिशन। कितना एडवांस मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा? 90%। 90% नहीं है जेंटलमैन, डिपेंड्स 75 Normal 12 months pay or 3/4 of the balance at credit, which is less. 12 महीने की पे या 75% of balance, whichever is less. मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है? 60 हो सकती है। ओके, अभी क्या होता है, कई बार अभी ये एडवांस है, उसने गवर्नमेंट सर्वेंट ने एडवांस लिया, मान लो 36 किस्तों में रिकवर होने वाला था, 12 किस्त रिकवर हो गई है, अब गवर्नमेंट से आता है कि मुझे और पैसा चाहिए, तो वो दोबारा फिर ले सकता है। अब क्या होगा, जैसे पहले लिया था वो जितना रिकवर हो गया है, बाकी बैलेंस वो जो नया लेगा दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, और दोनों की दोबारा इंस्टॉलमेंट फिक्स होंगे, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ एडवांस। सैंक्शनिंग अथॉरिटी हेड ऑफ द ऑफिस है, और जो पर्पज हमने डिस्कस किए 7 पर्पज है। Anybody want to take advance other than these purposes, उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, that advance will be sanctioned by head of the department. Next, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए। आपने जीपी फंड की सैंक्शन किसी को विड्रॉल के लिए सैंक्शन कर दी, इशू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट मान लीजिए उसने डॉक्टर की एंगेजमेंट के लिए एडवांस लिया है, और अब उसकी इवेंट चेंज हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, वो उस एडवांस को ड्रा नहीं करना चाहता, वो कहता मेरा तो 4 महीने के बाद इसको ड्रा करिएगा।
तो उसके लिए जो सैंक्शन इशू होती है उसका वैलिडिटी पीरियड कितना है? एनीबॉडी इज अवेयर? स्वाति जी बताइएगा। नहीं पता किसी को? नो सर। नो। उसका पीरियड है 3 मंथ्स। अगर उस सैंक्शन के अगेंस्ट 3 महीने के अंदर एडवांस या विड्रॉल ड्रा नहीं किया तो फर्दर उससे एडवांस या विड्रॉल नहीं किया जा सकता, उसको रीवैलिडेट किया जाता। क्या किया जाएगा? उसको रीवैलिडेट किया था। रीवैलिडेट करने के बाद ही उस सैंक्शन के अगेंस्ट विड्रॉ एडवांस और विड्रॉल ड्रा किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये जीएफ आप नोट करना चाहें, ये जीएफआर का रूल नंबर 268 है। जी फंड रूल में नहीं लिखा है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ द एडवांस। एडवांस शैल बी रिकवर्ड इन मैक्सिमम मंथली 60 इंस्टॉलमेंट। ज्यादा कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है? 60 हो सकती है। और सब्सक्राइबर वांट टू रीपे द एडवांस इज लेस देन 60 इंस्टॉलमेंट्स, देन ही कैन। अगर चाहता है कि मैं तो कम इंस्टॉलमेंट में इसको रीपे करूंगा, इट इज एडमिसिबल। More than one installment can be repaid by making a request to the DDO। अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट कट रही है उसकी, वो कहता मैं तो इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी वो राउंड में बढ़ेगी, मल्टीपल में बढ़ेगी। जैसे 10 की 20 हो जाएगी, 20 की 30 हो जाएगी, वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। वो चाहे मेरी 15,000 की कर दी है या 25 की कर दी है, दैट इज नॉट एडमिसिबल। किसमें होगी? वो मल्टीपल में होगी। यानी 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। There will be no fraction of installment. Recovery of advance shall commence from the salary of the following month of payment। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, जैसे किसी ने अभी अगस्त में एडवांस लिया है, उसकी रिकवरी स्टार्ट होगी फ्रॉम द सैलरी ऑफ सितंबर। रूल नंबर 14, wrongful use of advance। Suppose a government servant has taken advance to meet the cost of marriage of his or her daughter, लेकिन सब्सिक्वेंटली सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पता लग जाता है कि इसने तो एडवांस किसी और पर्पज के लिया था, लेकिन इसने यूज कहीं और किया है। रूल नंबर 14 में उसके राइटर लगाया हुआ है, क्या राइटर है देखिएगा। If the sanctioning authority has reason to doubt that the amount drawn as an advance under rule number 12 has not been utilized for the purpose for it was sanctioned, he can be communicated his doubt in writing to the subscriber, and if the explanation furnished is not satisfactory, he can be asked to repay the amount of advance with full। Immediately उसको कहेगा कि आपने जिस पर्पज के लिए लिया था उसके लिए एडवांस को यूज नहीं किया है, आप इसको सारे को रिफंड करिए। I hope it is clear to all. Should I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 15 है विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। अब बताइएगा किस किस पर्पज के लिए विड्रॉल मिलता है? अभी आप काफी बोल रहे थे, बताइएगा। Education. बोलिए। नंबर 1 Education, sir. एजुकेशन, वेरी गुड। Then illness, sir. इलनेस, Renovation of house. नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। एडवांस वाले 7 रूल सारे फॉलो होंगे इसमें। हैं जी? एडवांस वाले 7 रूल्स जो हैं वो सारे फॉलो होंगे इसी में, पेट्रोल में। कौन से कवर होंगे? एडवांस के लिए जो 7 रूल्स जो भी बताए थे, सारे नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर कार एडवांस, सर पहले रेनोवेशन देखिएगा, सुनिएगा Purchase of house site, sir. सुनिएगा परचेज ऑफ कार, सुनिएगा पहले एक सेकंड सुनिएगा। जो हमने एडवांस में 7 पर्पज बताए थे, उनमें से जो 4 हैं, कौन कौन सा है? एजुकेशन है, इलनेस है, और कौन सा था? ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस था, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था। ये चारों विड्रॉल में भी कवर होते हैं।
ये चारों के चारों विड्रॉल में भी कवर होते हैं, लेकिन यहाँ एक राइडर है, सुन लीजिएगा, एवरीबॉडी शुड लिसन इट केयरफुली। जब हम एडवांस लेते हैं, हम जो खास ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस के अंदर लेते हैं, एडवांस फॉर टू मीट द कॉस्ट ऑफ मैरिज ऑफ डिपेंडेंट नीस एंड मैरिज ऑफ डिपेंडेंट नेफ्यू, दोनों के लिए लेते हैं, डिपेंडेंट नीस के लिए भी और डिपेंडेंट नेफ्यू के लिए भी। लेकिन जो विड्रॉल मिलता है दैट इज एडमिसिबल ओनली फॉर मैरिज ऑफ नीस, नेफ्यू की मैरिज के लिए नहीं मिलता। इट इज क्लियर? यस प्लीज। Yes, sir. जो विड्रॉल मिलेगा वो सिर्फ नीस की मैरिज के लिए मिलेगा, नेफ्यू की मैरिज के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है इसमें कंडीशन है, जो भी विड्रॉल मिलता है, अब ये चार मैं पहले बताऊंगा, इनके लिए कंडीशन है कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। कितनी सर्विस होनी चाहिए? 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। फर्स्ट पर्पज है एजुकेशन, टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सेल्फ, सन, डॉटर, डिपेंडेंट्स। दूसरा है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, इसमें क्या बताया था मैंने, मैरिज है, इंगेजमेंट है, दस्तारबंदी है, आपके श्राद्ध हैं, क्या है, कर्ण छेदन है, मुंडन है, ये दिस और का टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल कम अंडर द हेडिंग ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस। और इसी के लिए बताया था मैंने, जैसे मैरिज के लिए आप नेफ्यू और नीस के लिए लेते हैं, इसमें सिर्फ नीस के लिए मिलेगा। थर्ड है इल्स और फोर्थ है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये जो चार प्रकार के हमारे विड्रॉल हैं, इनके लिए मैंडेटरी है 10 साल की सर्विस होना जरूरी है। याद रहेंगे चारों? यस प्लीज। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट है, ये जो टोटल पर्पज हैं जिसके लिए विड्रॉल मिलता है वो 16 पर्पज है, 16 पर्पज है। वो 7 थे, ये 16 है। ये चार हो गए हमारे 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। 6 पर्पज हैं हाउसिंग से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड। सबसे इसमें आपकी जो पिछली स्लाइड में दिखाया था 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, यहाँ 10 साल की सर्विस कंडीशन नहीं है। बिल्डिंग और एक्वायरिंग ए सूटेबल हाउस और परचेजिंग ए रेडी बिल्ट हाउस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ साइट, इसके लिए आप विड्रॉ ले सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन टेकन फॉर हाउस बिल्डिंग, आपने कहीं से भी हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है, उसको रीपे करने के लिए आप जीपी फंड से विड्रॉ ले सकते हैं। परचेजिंग ए हाउस साइट, आप प्लॉट खरीदने के लिए जी फंड से विड्रॉ ले सकते हैं। रिकंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग एडिशंस टू ए और अल्टरेशन टू ए हाउस ऑलरेडी ओन, आपके पास पहले से कोई मकान है, उसको रिकंस्ट्रक्शन से करना चाहते हैं, उसमें कोई एडिशन अल्टरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप जीपी फंड से विड्रॉ ले सकते हैं। और नेक्स्ट है रिनोवेटिंग, एडिशंस और अल्टरेशन और अपकीप ऑफ एन एंसेस्ट्रल हाउस और ए हाउस बिल्ट विद द असिस्टेंस और लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। आपका कोई एंसेस्ट्रल हाउस है, उसके अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या अपना कोई हाउस है उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए, यू कैन टेक विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। ये 6 पर्पज हैं हाउस से रिलेटेड हैं जिसके लिए जीपी फंड से विड्रॉल मिलता है। और आपने जो प्लॉट खरीदा है उस पर आप मकान बनाना चाहते हैं, उसके पर्पज के लिए यू कैन टेक विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। और हाउसिंग से रिलेटेड जो भी आप विड्रॉल लेंगे उसमें कोई सर्विस कंडीशन नहीं है। जैसे पिछली स्लाइड में बताया था मैंने, आपको आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन हाउसिंग से रिलेटेड उसके लिए सर्विस कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, चल ये क्लियर है? यस प्लीज, इट इज ओके? शुड आई गो अहेड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। और नेक्स्ट देखिए, ये 6 हो गए हमारे, 7वां देखिएगा। विद इन 24 months of retirement
विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। पहले ये 1 साल की कंडीशन थी, अब ये 24 महीने की हो गई है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला है, अभी उसके 2 साल बाकी हैं, 24 महीने बाकी हैं, तो ही कैन टेक विड्रॉल विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, वो अपना विड्रॉल ले सकता है। रूल 15D के अंदर once in a financial year equal to the amount subscribed towards CGS. Somebody was telling this. वो आपने ग्रुप इंश्योरेंस में जो पैसा 1 साल में सब्सक्राइब किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके बराबर आप जीपी फंड से फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, GID बिलो रूल 15(1) में इसमें क्या लिखा है? परचेज ऑफ मोटर कार मोटरसाइकिल। अब मोटर कार मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जीपी फंड से एडवांस ले सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। GID 2 बिलो रूल 15(1) विड्रॉल फॉर एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ ए कार। आपके पास एक कार है, उसके आपने एक्सटेंसिव रिपेयर करवानी है, ओवरहॉलिंग करवानी है, उसके लिए यू कैन टेक विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। नेक्स्ट है GID 3 बिलो रूल 15(1). कोई आप कार आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस यू कैन टेक विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। नाउ विदाउट असाइनिंग अ रीजन विद इन 24 मंथ्स, ये पहले हमने बता दिया है। ओके, अब इन अमाउंट क्या मिलेगा? नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है? कन्वर्सन ऑफ लीज और प्रॉपर्टी इनटू फ्री होल्ड। बिग सिटी है जैसे दिल्ली है, गाजियाबाद है, जितने भी हमारे मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, वहां पर एक अथॉरिटी होती है। जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हर सिटी, बड़े सिटी के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। वो पहले क्या है, जो जो हाउस प्रॉपर्टी सेल करती थी वो लीज होल्ड पे करती थी, बेचती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री होल्ड। उस प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक विड्रॉल फ्रॉम द जीपी फंड। These are the purposes for which withdrawal from the GP fund is admissible. Is it okay? Yes, Sir, please. हाँ जी, Sir, what is GID? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। Okay, sir. Thank you. ये रूल के नीचे लिखा जाता है, अगर कोई एक रूल बना है, बाद में सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट उसको डिसीजन लिया है, उसको GID कहते हैं। एक GIO होता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर कहते हैं। Okay, sir. Thank you. ओके, अब देखिएगा अमाउंट ऑफ विड्रॉल। जीपी फंड के या से हाउसिंग के लिए जो विड्रॉल मिलता है 90% ऑफ द बैलेंस। कितना मिलेगा? 90% ऑफ द बैलेंस। और विद इन 24 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट, उसके केस में भी 90% ऑफ द बैलेंस। आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, जैसे आपके मोटर कार साइकिल ले रहे हैं आप, ये वो जो फर्स्ट 4 पर्पस थे उसमें था 3/4 ऑफ द बैलेंस। और जब भी आप मोटर कार खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लेस। कन्वर्सन ऑफ एडवांस इनटू विड्रॉल रूल नंबर 16 है। अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि विड्रॉल इज एडमिसिबल आफ्टर एंडिंग 10 years ऑफ सर्विस। अब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 9 साल की सर्विस हुई है, बात की डेट में लागू नहीं है ये, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी की 9 साल की सर्विस हुई है, उसने जीपी फंड से एडवांस लिया है। इसलिए लिया है कि उस टाइम कि वो उसकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई थी, वो विड्रॉल नहीं ले सकता था। अब उसकी 10 साल की सर्विस हो गई है, तो दैट एडवांस जितना भी रिकवर हो गया है, उसको बाकी जो अनरिकवर्ड है बैलेंस है, उसको विड्रॉल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है अंडर रूल नंबर 16A ऑफ द जीपी फंड रूल्स। Now the balance amount advance granted under rule number 12 can be converted into withdrawal on the written request of the subscriber. Government servant उसकी रिक्वेस्ट करेगा तभी वो होगा। For conversion of advance into withdrawal, sanction of head of the department is according. तो ये कन्वर्ट कौन करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा।
On conversion of advance into withdrawal, the recovery of advance will be stopped. No further recovery will be made. The amount of advance can be converted into withdrawal in cases where the purpose is covered by advance and withdrawal. ये कन्वर्ट उसी का होगा जहां पर्पस एडवांस और विड्रॉल का सेम है. जैसे कौन कौन से थे मैंने बताया था, एजुकेशन, इलनेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, दोनों में कवर होते हैं. तो एडवांस टेकन फॉर these four purposes can only be converted into final withdrawal. मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था जीपी फंड रूल के अंदर 41 रूल हैं, 1 से 16 और 17 से 30 तक रूल डिलीट हो गए. उसके बाद कितने से स्टार्ट होता है? 31 से. अब लेट अस सी व्हाट इज रूल नंबर 31. Final withdrawal accumulation in fund. Rule number 31. On quitting service, amount becomes due for payment. Government servant किसी भी वजह से सर्विस को छोड़ता है, जैसे वो सर्विस छोड़ेगा उसका जितना भी जीपी का बैलेंस है वो उसको पेमेंट के लिए ड्यू है. रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज एंड फाइनल पेमेंट नॉट टू नेक्स्ट. जो उसकी फाइनल पेमेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट की रिकवरी है तो वो उसके साथ मिक्स नहीं की जा सकती, बिकॉज जीपी फंड बैलेंस से कोई भी रिकवरी नहीं की जा सकती. फंड इज फ्री फ्रॉम नॉमिनी लायबिलिटी. सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है, उसका नॉमिनी है, उसको पेमेंट करनी है. अब नॉमिनी की कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी का इससे कोई लिंक नहीं. अमाउंट मिसअप्रोप्रिएटेड नॉट टू एडजस्टेड. सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कोई बंगलिंग कर दी है, मिसअप्रोप्रिएट कर दिया अमाउंट, वो जीपी फंड से एडजस्ट नहीं हो सकता. रूल नंबर 32. रिटायरमेंट ऑफ सब्सक्राइबर. जैसे सब्सक्राइबर रिटायर होगा देन व्हाट विल हैपन, उसको सारी फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी. अभी जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है तो हम इंसिस्ट करते हैं कि उसको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट देना चाहिए. लेकिन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द जीपी फंड नो डिमांड सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी. क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? बिकॉज नो रिकवरी, नो amount can be adjusted from the GP fund balance. It is very secure one. Procedure on the death of a subscriber. Rule number 33. When the subscriber leave a family, अब सब्सक्राइबर की फैमिली है, अब उसने नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, पेमेंट विल मेड टू द नॉमिनी ओनली. जिसके नाम फेवर में नॉमिनेशन है उसी को पेमेंट की जाएगी. If no such nomination, the whole amount becomes payable to the members of the family in equal shares. जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको इक्वल शेयर में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. But provided no share shall be payable to major sons of deceased, married daughters whose husbands are alive, married daughters of deceased son whose husbands are alive. When no nomination and no family, the amount will lapse to the government. कोई क्लेमेंट ही नहीं है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा. Now next very important point is deposit linked insurance scheme. Rule number 33P. This is known as DLI, is also in short form. For this DLI, deposit linked insurance scheme, no additional amount is required to be made. इसकी एडमिसिबिलिटी कब होती है देखिएगा. On the death of a subscriber while in service, a government servant in service उसकी डेथ हो जाती है, an additional amount equal to average balance in the account during last 36 months on the death of the subscriber, subject to maximum of 60,000, payable to nominee subject to the following conditions. क्या conditions हैं देखिएगा.
Average monthly balance for 63 months, including interest of March. Death taking place before midnight of last working day taken as death in service. For the government सर रिटायर हो गया है, घर चला गया है, और रात के 12 बजे से पहले उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई. In that case also the amount of DLI will be admissible. Applicable in the case of suicide also. If government servant suicide कर लेता है, so that person will also be included for the benefit of DLI. Payment of DLI along with the GPF payment. अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली है उसको एडिशनल कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती. जैसे उसके GPF की पेमेंट होगी उसके साथ DLI की पेमेंट भी हो जाएगी. Payment due under DLI in respect to missing subscriber will be admissible after 7 years to the nominee. Here provided claimant produce a indisputable proof of death or decree of a court. तो मिसिंग हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये DLI का पैसा 7 साल के बाद मिलता है, या उसका डेथ का प्रूफ प्रोड्यूस करें या एक कोर्ट की डिक्री का सबमिट करें. अब देखिए वर्कआउट कैसे करते हैं. The average balance at the credit should not less than. अब इसको ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है. 7th CPC का भी ऑर्डर नहीं हुए, जब होंगे तो ये डाटा अपडेट हो जाएगा. क्या है इसके अंदर? सबसे जरूरी है जो GPF का सब्सक्राइबर है उसकी कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए. कितनी सर्विस होनी चाहिए? He should have rendered 5 years of service, complete 5 years service under GPF. आज की डेट में लागू नहीं होता. 1/1/4 को 19 साल हो गए हैं, तो अभी सभी इसके अंदर कवर होंगे. अभी देखिएगा, ये समझने वाली चीज है. देखिएगा इसको कैसे वर्कआउट करते हैं. ये there is a mistake in the figure. This figure is 4800. Here it is 48,000. I'm repeating, this figure is 4800. जिनकी लोग ऑफिसर्स की ग्रेड पे 4800 या उससे अबव है, तो ड्यूरिंग दी 30 प्रीसीडिंग 36 मंथ उसके GPF फंड अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 25,000 होना चाहिए पर मंथ. Those for drawing paying 4200 but less than 4800 in their GPF fund account, monthly balance during the preceding 36 should be not less than 15,000 per month. Those for drawing pay in less than 4800 grade 2 grade पे, उनके केस में मिनिमम बैलेंस शुड बी 10,000 पर मंथ. देखिएगा आगे इसमें क्या एक्सप्लेन किया है. अब एग्जांपल दिया हुआ है. A government servant has died on 25th January 2022 while in service. Then how the entitlement under DLI is calculated? कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा. जो महीना डेथ का है, जिस महीने उसकी डेथ हुई है उस महीने को छोड़ देते हैं, उस महीने को छोड़ देंगे. उससे प्रीसीडिंग 36 मंथ हम देखेंगे. इस केस में प्रीसीडिंग 36 मंथ कैसे हो जाएंगे, यानी जनवरी 20 को छोड़ दिया हमने, 12 महीने 21 के, 12 महीने 20 के, 12 महीने 19 के, टोटल कितने महीने हो गए? 36 मंथ. हर महीने उसके लेजर में उसके जीवन अकाउंट में देखते हैं कि his for her balance in the GPF account should not be less than 25,000, 15,000, 10,000 as the case may be. अगर किसी भी महीने, if in any of the month the balance is less than that amount, then there will be no entitlement. कोई entitlement नहीं होगी, कुछ पैसा नहीं मिलेगा. अब देखिएगा ये एग्जांपल है. अब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की यानी 4200 ग्रेड से पे में है या 4800 में या 4200 में है, तो हम पीछे 36 महीने की एवरेज निकाल. अब 36 महीने की एवरेज निकाल के उसको 36 से डिवाइड करेंगे, वो फिगर होगी. और मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल इज 60,000. दोनों में जो भी कम होगा ओनली दैट अमाउंट विल बी पेड. एवरेज ऑफ 36 मंथ और ₹60,000 whichever is less, that will be payable in
I already told you, for claiming this amount, for making payment of this amount, no additional requirement on account of submitting application, subscription, etc. is not required. Out of the average 36 month, rupees 60,000, whichever is less shall be payable. If balance is below the threshold limit, then there will be no entitlement. Yes, it is okay or requires some more explanation? Yes, please. सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताता हूँ, देखिएगा, मैंने बताया है जो जीपी फंड के सब्सक्राइबर, अगर उनकी 5 साल की सर्विस होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं ग्रेड पे, 4800, 4200, 40 के बीच में और 4200 से नीचे। ये देखते हैं उनके अकाउंट में कम से कम ये 3 कैटेगरी बनाई, 25,000, 15,000, 10,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर मिनिमम बैलेंस है तो हम 36 महीने की एवरेज निकालेंगे, और दूसरा है 60,000 एक हम फिक्स अमाउंट है, दोनों में जो भी कम होगा वो फैमिली को मिलेगा। सपोज ग्रेड पे 4800 वाला है, उसके एवरेज है 36 महीने की, मान ले 85,000, तो कितना अमाउंट मिलेगा? 60,000। अगर एवरेज 45,000 है तो 45,000 मिलेगा। ये राइटर, और इसके लिए मैंने बताया है कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है, अप्लाई नहीं करना पड़ता, जो अकाउंट्स ऑफिस है आपको ऑटोमेटिक विल मेक दिस पेमेंट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, thank you. Sir, is this DLI is a separate scheme or something, or it is along with the GPF? It is along with the GP. It is concerned with the GP fund. But the condition is government servants should have minimum balance in the GP fund and he should have put in 5 years of service. 5 years आज डेट में सभी की हो गई है, उसके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। लेकिन सब कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नहीं, सम जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द ऑफिस आर वेरी सेंसिटिव है, वो क्या करते हैं, while sanctioning the advance or withdrawal from the GP fund, वो एक राइडर लगा देते हैं कि एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग एडवांस और विड्रॉल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके अकाउंट में मिनिमम इतना पैसा रहना चाहिए, सो दैट इन द केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी द अमाउंट इज पेबल टू द फैमिली। इज इट ओके? शुड आई गो अहेड नाउ? Sir, this is like a insurance. इंश्योरेंस इज लाइक इंश्योरेंस, लेकिन इस इंश्योरेंस के लिए कोई एडिशनल आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना, अलग से नहीं देना होगा इसमें कुछ कोई आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसमें बेनिफिट मिलता है। automatic. So every GPF holder is a part of DLIS. Yes, every GPF account holder, subject to condition in their GPF balance during preceding 36 month, balance should not be less than this amount. And this There is no need to exercise the option. no option. Okay. No option required. No option required. Should I go ahead? Yes. Okay. Now, payment when the whereabout of the subscriber not known. GIDC, government is in chair. Immediate payment of salary, जैसे जीपन का सब्सक्राइबर मिस हो गया है, एस्पोन्ड हो गया है, उसके केस में क्या करेंगे? Immediate payment of salary dues, leave encashment, GFN balance having regard to nomination. Nomination के अकॉर्डिंग पे पेमेंट करेंगे। After 1 year, retirement gratuity and family pension, ये 6 महीने का पीरियड हो गया, पहले 1 साल का। Conditions to be fulfilled, क्या कंडीशन है? Lodge police report and obtain no traceable certificate. आप FIR करवाएंगे पुलिस में और पुलिस से नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट लेंगे। Should furnish indemnity bond. Indemnity bond क्या है? Just like a agreement है, एफिडेविट है। इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट रीअपीयर्स, जिसको भी वो पैसा मिला है, ही और शी हैज टू रिफंड इट टू द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट एडमिसिबल अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सॉरी डेट ऑफ क्या है वर्ड यूज किया, रिपोर्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पुलिस। जो इंटरेस्ट मिलेगा जीपी फंड 6 month तक ही मिलेगा। इंटरेस्ट इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, interest payable up to 1 month from the date of becoming due, 1 महीना बाद तक मिलता है। up to 6 months if the delay is on the part of the office। अब ऑफिस की तरफ से डिले है
फाइनल करने में देर लगा रही हैं या कोई उनके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, then interest is allowed for 6 months up to 1 year by the head of accounts office. अगर 6 महीने से के बाद भी देना है तो हेड जो अकाउंट्स ऑफिस है उसका हेड है उसके अप्रूवल से दिया जाए और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है why the payment has been made timely. Excess drawn from fund. The overdrawn amount shall be repaid with interest at the rate of 2% above the normal rate of interest on GP fund in lump sum, otherwise in installments. नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो जीपी फंड का बैलेंस है उससे कोई रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन जो डीएलआईस का अमाउंट है इससे किसी भी तरह की रिकवरी हो सकती है. Maximum limit applied on the average balance during the 36 months and not balance every month. Discontinuance of subscription for the last 3 months not to affect the entitlement. जो आपको पता है जीपी फंड का जो सब्सक्रिप्शन है जो सर्विस के आखिरी 3 महीने होते हैं उसमें बंद हो जाता है, तो ये सब्सक्रिप्शन बंद होने से उस पर कोई असर नहीं आएगा. Manner of final payment, rule number 34. Duty of the head of the office and accounts office to make payment timely. Payment admissible in India only. Head of the application by subscribing form GPF to head of the office will forward the application to accounts office and duly filled in and certified. और accounts office की authority का इशू करेगा और उसके हिसाब से उसका बिल बना के पेमेंट will be made to the government servant or to the family of the government servant as the case may be. प्रोसीजर ऑन ट्रांसफर. एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है तो इफ द अकाउंट्स ऑफिस रिमेन्स द सेम देन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो चेंज ऑफ अकाउंट नंबर इज देयर. अगर उसका अकाउंट्स ऑफिसर चेंज हो जाता है, जिस अकाउंट मेंटेन वाली अथॉरिटी चेंज हो जाती है तो उसको न्यू अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है और जो पुराने अकाउंट में जो उसका बैलेंस है दैट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द न्यू अकाउंट. ट्रांसफर टू सीपीएफ. एक गवर्नमेंट जीपी फंड का सब्सक्राइबर है सीपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है तो जो जी फंड का बैलेंस है उसके सी फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट का अकाउंट है. रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस, रूल नंबर 37. अगर जी फंड रूल में कहीं को रिलैक्सेशन करवाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के पास जाना पड़ेगा. नंबर ऑफ अकाउंट रिपोर्टेड. अगर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं कोई कम्युनिकेशन करते हैं जी फंड के बारे में, it is mandatory that one should put the G fund account number. और जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो आफ्टर दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इशूड. उसमें क्या होगा आपका ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, रीपेमेंट ऑफ एडवांस, देन लेस एडवांस और विड्रॉल टेकन प्लस इंटरेस्ट अलाउड, देन क्लोजिंग बैलेंस. The closing balance of the current year will be carried forward as opening balance in the next year. इंटरप्रिटेशन. अगर आपको इंटरप्रिटेशन कोई करवानी है तो यू हैव टू गो टू डिपार्ट ऑफ पेंशन वेलफेयर फॉर द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन और दिस वाज अबाउट जीपी रूल्स. ओके, अभी if anybody is having any question, most welcome to ask before I go ahead. Sir, any employees has a subscription 40,000 per month. And he apply for advance 5 lakh like and his installment is 15,000. Is admissible? Why not? But selling of 5 lakh in annually. नहीं आप you could not get the actual point. वो सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपये महीने का कटवा रहा है, 1 साल का कितना हो गया? नहीं, अगर क्रॉस करता है सर तो मैं ये जानना चाह रहा हूं. नहीं उससे कोई मतलब नहीं. एडवांस हम ग्रांट करेंगे सर उसको. नहीं आप सब्सक्रिप्शन की बातें हैं, जो रिकवरी जब 15,000 रुपए की करवा रहे हैं उससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा. ये कंट्रीब्यूशन की बात है. एडवांस का अमाउंट की रिकवरी कितने की है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अच्छा, एडवांस अलग से सर उसकी रिकवरी हो सकती है? उसकी कितने की भी हो सकती है, उसकी 5 लाख में कोई लिमिट नहीं है. नहीं सर, 50,000 रुपए पर मंथ वो अभी कटवा रहा है जीपीएफ में. 50 का 6 लाख हो गया, 50 नहीं काट सकता. हाँ तो मतलब जो भी सीलिंग आती है 50 से यानी 5 लाख से ज्यादा नहीं कटवा सकता. हाँ 5 लाख वो कटवा रहा है, उसके बाद उसने अप्लाई कर लिया एडवांस के लिए इंस्टॉलमेंट में. हाँ जी.
तो हम उसको अलाउ करेंगे सर इंस्टॉलमेंट में यस भी यस, उसमें? जो रिफंड ऑफ एडवांस है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो कितना भी होगा, वो 5 लाख के लिमिट में नहीं है। नहीं है सर, ओके। सिर्फ वो जीवन सब्सक्रिप्शन के लिए। तो वो इंटरेस्ट तो नहीं आएगा ना सर उसके ऊपर, वो जो? नहीं, वो इंटरेस्ट आएगा, रिफंड करेगा, आप देखिएगा उसने 10 लाख ले लिया है, उसके बैलेंस से कम हो गया पैसा, हाँ जी। लेकिन जब वो रिफंड करेगा उसका जो इंटरेस्ट हाँ जी। आएगा उस पर इनकम टैक्स से उसका कोई लिंक नहीं है। नहीं लिंक है ना, यही जाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है अभी सर। अभी और मैं थोड़ा और देख आपके, ये देख के थोड़ा सा इसको देखिएगा। अभी आपका टाइम हो गया क्लास का, अगर आप उचित समझते हैं तो वी कैन डिस्कस 5-10 मिनट्स मोर, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। देखिए इसको पढ़िएगा। सर रूल नंबर 41 में रिपील क्यों लिखा हुआ है? रिपील का मतलब है ये रूल आपको सर्व किए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। ठीक है जी। सर विड्रॉल 1 साल में कितना ले सकते हैं? विड्रॉल है एक, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो हमारा FAQ और जीवन रूल है उसके अंदर 6 महीने का गैप आना चाहिए। ठीक है, तो सर इसका मतलब साल में 2 ही विड्रॉल ले सकते हैं? सेम पर्पज के लिए, अगर डिफरेंट पर्पज है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, यस। अभी पढ़िएगा इसको पढ़िएगा एक बार, अगर आपके पास टाइम है तो वी कैन डिवोट 5-10 मिनट्स मोर, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। बोलिएगा, पढ़िएगा इसको। पढ़ लिया? यस प्लीज। आप पढ़े कि नहीं पढ़े कोई बता भी नहीं रहे। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। A Yes, government servant who was subscribed to GP fund, misappropriated government money, was convicted and dismissed from government service. Competent authority ordered that the government money misappropriated may be recovered from the balances lying in a GP account. Okay, give your comment. No recovery. Sir, no recovery has to be No done. recovery, sir. No recovery can be made because G fund balance is very safe money, इससे कोई रिकवरी नहीं हो सकती। सेकंड देखिएगा, a case working in a central government office was retired on superannuation, but he has not submitted a notice certificate from all concerned. Competent authority order not to release the G fund payment on retirement because he was handling cash and has not submitted the notice certificate. Yes, बोलिए। But no dues is No requirement. GPF payment. In the case of GP fund, no due certificate is not required. Yes, a government son joined government service in 1987 and started subscribing to GP fund in the year 1988. At the time of his joining the funds, he made a nomination in favor of his mother. He was married in 1995, but he has not changed the nomination on getting married. He unfortunately died in 2006. Head of the office is in favor of authorizing the balances of G fund to his mother, stating that he is abide by the nominations furnished by the subscriber. Wife of the subscriber has come to seek guidance in the matter. Please give your comment. बोलिए। Sir, nomination made before marriage stands void. Yes, yes, बोलिए। Invalid. हाँ जी, Hello. Sir, हाँ बोलिए बोलिए। I think payment will be made to his mother. His mother. After marriage, wife will be the only legal head. 100%. But he is not 100%. nominate, na? In the after marriage, payment will be made only to the wife, whether nomination is there in her favor or not. तो पेमेंट किसको मिलेगी? Wife को. Wife को। वाइफ को मिलेगी। जैसे ही उसकी मैरिज हुई, he should have changed the nomination immediately. Whereabout a subscriber of the G fund is not known. His family approached the head of the office to release the G fund payment to them as they have no sufficient income to survive. Head of the office refused to entertain the request of the family, stating that he will release the given balances on production of proof of death of the subscriber. Yes, क्या करेंगे उसके लिए? Sir, सभी Yes, sir, eligible. we can release, office can release. Release नहीं करेंगे, you have to file ये FIR with the police. उससे आपको obtain सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे।
ओके, अभी जो दास साहब ने मुझे एक काम कहा था, वो क्या कहा था, ये भी बताना है हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन जीपी फंड। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन जीपी। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन देखिएगा। From the following particulars, calculate interest and the closing balance standing at the credit of Sri ABCS so as on 31st March 2022। ये आप नोट कर लीजिएगा फिगर। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को कितना है? 7,50,000। Monthly subscription during FY 2023, 40,000 per month up to the salary of September 22 and at the rate of 20,000 per month during the remaining month of financial year. Took GP fund advance of 5 lakh from 10th May 2022, recoverable in 25 installments. He was on EOL during the full month of June 2022. Rate of interest 7.10% per annum. तो इसके केस में वी हैव टू वर्क आउट द इंटरेस्ट। आपने फिगर नोट कर ली है? शुड आई गो अहेड? नहीं सर। करिएगा। जस्ट अ मिनट। हो गया? यस सर। ओके, अब देखिएगा इसमें आपने क्या लेना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेना, उसके बाद आपने एक टेबल बनानी है। मंथ है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद रिफंड ऑफ उसके बाद है एडवांस विड्रॉल लिया है, उसके बाद रिफंड ऑफ एडवांस है, फिर आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। 12 महीने की फिगर निकालते हैं। तो हम कैसे करते हैं? जो मार्च की पे है, इट इज पेबल ऑन 1 अप्रैल, उस पर लिखते हैं मार्च पेड इन अप्रैल। देखिएगा आगे क्या लिखेंगे उसमें, मार्च पेड इन अप्रैल। अब ये देखिएगा, ये मैंने कैलकुलेट किया है। अब आपने फिगर नोट की है, मार्च पेड इन अप्रैल, इसी 12 महीने का निकालेंगे हम। मंथली सब्सक्रिप्शन है उसका 14,000 पे। ये जो फर्स्ट है ये मार्च के पे का है, और मई के महीने में उसने 5 लाख एडवांस लिया, वो मई महीने में दिखाया जाएगा। अब इसका 1 अप्रैल को बैलेंस था 7,64,000। इसके अंदर मार्च की जो पेड राखी हमने वो अप्रैल के अंदर हुई है, वो उसमें ऐड कर देंगे। ओके, और जो एडवांस की रिकवरी होती है, जिस महीने एडवांस लिया है उससे नेक्स्ट मंथ रिकवरी स्टार्ट होती है, और जो हमारा अकाउंट का सिस्टम है वो अगले महीने दिखाई जाती है। अगर किसी ने मई में एडवांस लिया है उसकी रिकवरी जून से होगी, लेकिन जब हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो जुलाई में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जुलाई के महीने में वो ईओएल पर है। ईओएल पर है तो उसमें कोई उसकी पेड रानी होगी, पेड रानी होगी तो रिकवरी भी नहीं होगी, तो वो रिकवरी यहाँ जीरो सर वो जून के महीने पे, जून के महीने में ये हो रहा है। जून में है सर, जून में है। जून में है, जून में रिकवरी होनी चाहिए, ये मतलब है। जून में ये वाला सर, जून में ईओएल रिकवरी नहीं जून में होगी। ईओएल है ना, जून में ईओएल है उसकी, आपने लेकिन जुलाई हम में ये किया एक सर, महीना आगे दिखा रहे हैं। ये आपने जुलाई में दिखाया सर। करेक्ट है सर, करेक्ट है। अजय भाई इसको पीछे ले जाएगा आप, ये एक महीना पीछे ले जाएगा। जून में, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन गलत है, मैंने जुलाई को कंसिडर किया है। तो ये ईओएल कब आएगी? जून में आएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर। उसी तरह आप इसको बढ़ा लीजिएगा एक महीना। ठीक है सर, ठीक। ये रिकवरी आने के बाद जो मंथली सब्सक्रिप्शन है और जो रीपेमेंट एडवांस, दोनों का टोटल कर लेंगे। और यहाँ पर जो राइट साइड में, इसको हम कहते हैं पीटी, प्रोग्रेसिव टोटल है। 764 था, उसमें से हमने 750 था, 14 उसमें ऐड करके 764 हो गया। फिर 14 ऐड करके बाद 5 लाख माइनस कर दिया, 270 हो गई। इसको हम आगे ऐड करते रहेंगे, और ये जो फिगर आएगी, जो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टोटल, ये 52,72,00 है, ये इसको क्या कहेंगे हम? प्रोग्रेसिव टोटल। इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जो फिगर है इसको 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाई 100 बाई 12, 1/2, 1/12, 1200 हो जाएगा। ये आप उसका अमाउंट इंटरेस्ट करेगा।
This is the method of calculation of interest on. ठीक है? Yes, please. Sir, is it same like HBB interest, sir? हैं जी? हाउस बिल्डिंग का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते प्रोग्रेसिव जो बता रहे हैं वो सेम है ना सर? किसका? जो दूसरे एडवांस होते हैं इसमें ये बैलेंस बढ़ता है। जो एडवांस वगैरह लिया है, जैसे किसी ने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है, उसमें बैलेंस रिड्यूस होता है। मेथड इज द सेम। मेथड इज द सेम। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर जो 5 लाख रुपए वाले राइडर है उसका ये देखिएगा। ये देखिएगा, जैसे मान ले किसी 55,000 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट ही वाज डूइंग, तो हम ये देखेंगे कि उसके 5 लाख रुपए कौन सी डेट को हो जाते हैं। जनवरी में हो जाते हैं, तो अप टू जनवरी इंटरेस्ट हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, और जनवरी के बाद जितना भी बैलेंस इस केस के अंदर है बाद में करते हैं। जो सब्सिक्वेंट जो उसका अमाउंट है वो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो सैलरी में उसमें इनकम टैक्स के लिए आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और उस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब तो राइडर लग गया है, अभी आप 5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। अगर गलती से हो भी जाए, किसी वजह से गलती हो सकती है, तो दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी एडिशनल अमाउंट ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बियॉन्ड 5। सर इसमें इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगेगा या फिर जो हमारी कंट्रीब्यूशन पे उस पे लगेगा? इंटरेस्ट पे लगेगा। इंटरेस्ट पे ना? ये सबसे राइट में जो दिखाया हुआ है ना, ये अब इसमें आएगा नहीं। ये जो राइट साइड में 296 है, 621 है, ये जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर है इंटरेस्ट पे। सर इंटरेस्ट पे करके 5 लाख से ज्यादा कटवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। अब तो राइडर है, कटेगा ही नहीं जी। अब तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। अभी किसी का कोई और का क्वेश्चन है कोई, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क, अदरवाइज जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में जिनका 5 लाख से ऊपर चला गया उनका लेंगे इसमें? हाँ जी, वो तो 31 मार्च को जो बैलेंस निकाला आपने उसी टाइम ले लिया। वो तो नहीं, जैसे तो नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं, मैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो गया ना, थोड़ी लेना। नहीं, जैसे कुछ साइंटिस्ट हो गए उनके 2-2 लाख का जीपीएफ सब्सक्रिप्शन था। हाँ। तो ये जो सीलिंग का ऑर्डर आया था, ये आया था अक्टूबर नवंबर में। 2 नवंबर 2022 को आया है। हाँ जी, तो उससे पहले उनका ऑलरेडी 5 लाख क्रॉस हो चुका था। तो जो पिछले साल की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जितना भी आएगा वो उनके इनकम में ऐड होगा और उसके ऊपर आप इनकम टैक्स करेंगे। ओके, ठीक है। यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स? सर फिर अब ये वाला इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि ये तो क्लोज हो चुका है चैप्टर। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ओके, थैंक भाई दे गलती से हो जाए फिर आ सकता है, नहीं आएगा। So this taxable interest will be carry forward, right, sir? Carry forward नहीं होगा, it will be added your income for the purpose of calculation of income tax. No, for the next year, financial year. नेक्स्ट ईयर से नहीं मतलब है इसका, उसी साल के ऊपर होगा ना। ये तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, उस फाइनेंशियल ईयर पे लगेगा। So the balance in the taxable interest won't be carry forward. No, it will not carry forward. ठीक है, तो should I say thanks to all of you? Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful presentation on GPF. Thank you, sir. So now for the participants, we are closing the sessions of today. Oh. Okay, thanks to all of you. Bye bye. Bye, sir.